Assalamu alaikum and welcome you all to the JK Life Science Academy. So this will be our lecture number 18, and in today's lecture we will discuss the questions from tetrad analysis. So far we have completed both ordered as well as unordered tetrad analysis of Chlamydomonas as well as Neurospora, and in today's lecture we will try to take questions from previous year CSIR, ICMR, DBT papers that have already came in the previous year exams, and we will try to solve those questions here, and that will make the concept more clear to you. Clear? Okay. So let us start. Let us take our first question from the tetrad analysis. The question was in the CSIR paper. The question was: following cross is made in the Chlamydomonas. So it should be clear in your mind that if it is Chlamydomonas, then it is unordered tetrad. Okay. And if it is Neurospora, then it is ordered tetrad. Okay. For tetrad analysis and following tetrad is observed. Tetrad ये था, ये क्रॉस किया गया था और पेरेंट जो था P1 था ये, और P2 जो था वो ये था P प्लस Q माइनस P माइनस Q प्लस, मतलब एक साइड से P डोमिनेंट और दूसरी साइड से Q डोमिनेंट, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अब जो भी कॉम्बिनेशन हमें नीचे मिलेगी जो डिविएट करेगी पेरेंटल कॉम्बिनेशन से, वो होगी रिकम्बिनेंट टाइप, चाहे वो टेट्रा टाइप हो, चाहे वो पेरेंटल डाई टाइप हो या नॉन पेरेंटल डाई टाइप हो, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। लेट अस सी। सॉरी। ओके, सो यहाँ ये आप इनके पास ये पेरेंट क्या है, पेरेंट वी शुड राइट हियर, इट इज P प्लस Q माइनस वन साइड एंड P2 इज P माइनस Q इज प्लस। नाउ सी, पहला जो है P प्लस Q प्लस, दिस इज रिकम्बिनेंट, दिस इज नॉन पेरेंटल, क्योंकि पेरेंट ये है P प्लस Q माइनस P माइनस Q प्लस, सो दिस विल बी नॉन पेरेंटल और वी कैन से रिकम्बिनेंट टाइप। P minus Q minus is also non recombinant. P plus Q is minus is parental, P is minus and Q is plus is parental, so it has both parental as well as non parental, so we call it tetra type tetrad, we call it tetra type tetrad, tetra type जिसमें सारे होंगे, tetra type, इसको हम आगे लिखेंगे tetra TP tetra type. Okay, next P is minus Q is minus, P is minus Q is minus, non parental, ये भी non parental, ये भी, so it will be non parental di type tetrad, so it will be what, non parental di type tetrad. ठीक है, नॉन पेरेंटल क्यों, क्योंकि ये डिवेट हो रहा है पेरेंटल कॉम्बिनेशन से, और पेरेंट हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो ये है P is plus Q minus P minus Q plus, सो दिस इज नॉन पेरेंटल डाइट। हमें पहले आइडेंटिफाई करा है कौन सा स्क्वायर जो है, कौन सा स्क्वायर क्या है। अब यहाँ पे देखो P माइनस Q प्लस इज पेरेंटल, P प्लस Q इज माइनस इज ऑल्सो पेरेंटल, P प्लस Q माइनस पेरेंटल, P माइनस Q प्लस इज पेरेंटल, सो इट विल बी पेरेंटल डाई टाइप, PD, पेरेंटल डाई टाइप। नेक्स्ट P प्लस Q प्लस, P प्लस Q माइन नॉन पेरेंटल, so it will be non-parental di-type tetrad. Clear? P minus Q minus non-parental, P plus parental, P non, so it will be tetra type, क्योंकि इसमें चारों हैं, so it will be TP tetra type, TT sorry, tetra type, it is TT here, TT tetra type. Okay, अब next P minus Q plus, P minus Q is plus, P plus Q minus, P plus Q minus, so this is parental di-type, parental di-type tetrad. हमें डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन P एंड Q, वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो फार्मूला है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, अनऑर्डर्ड टेट्राड के केस में इट इज हाफ ऑफ, अगर आपको याद होगा, टेट्रा टाइप प्लस नॉन पेरेंटल डाई टाइप डिवाइडेड बाय टोटल, वो कितना आएगा, हाफ ऑफ टेट्रा टाइप टोटल कितने हैं, एक हो गए 10, नंबर दिया गया है, दिस इज नंबर, ये है 10, ये है 25, हो गए 35, ओके, सो इट इज हाफ ऑफ 35 प्लस नॉन पेरेंटल डाई टाइप, नॉन पेरेंटल 5 और ये हो गए 20, सो दिस इज 20,
सो डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, टोटल अगर हम काउंट करेंगे दिस इज 40, 65, 70, 85, 85 और 85 और 40. So it will be 185 plus 40 will be 5, so it will be 125. So it is 125 total. It is 125 total multiplied by karoge 100. So it will come. So if you 5 divided by 2 is 17.5 plus करोगे 20, 37, 5 divided by 125.3 into 100, so it is 30%. So it comes, if you calculate, it comes 30. So there is 30% recombination between two, so there is 30 centimorgan distance. So अगर हम मैप बनाएंगे P और Q का, ये P है और ये यहाँ पे Q है और इनके बीच की जो दूरी है that is 30 centimorgan. This will be the answer. Okay, let's take another question. The question is, in Neurospora tetrad analysis following Escus reported. So Neurospora अगर कह रहा है that means it is ordered tetrad. ऑर्डर टेट्राड के केस में अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑर्डर के केस में फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन, कुछ ऐसा है वहाँ पे. तो अब हमें देखना है पहले फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन कौन से हैं और सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन कौन से. हमें याद है फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन वाले सारे के सारे होते हैं पैरेंटल, वहाँ पे कोई रिकम्बिनेंट नहीं होता है, इसीलिए इसी वजह से वो पहले ही मियोसिस फर्स्ट में ही सेग्रीगेट होते हैं. और सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन में 50% होते हैं पैरेंटल और 50% होते हैं नॉन पैरेंटल. ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है. यहाँ पे एस्कस रिपोर्टेड हमें बताना है, हमें जी इनटू सेंट्रोमियर की मैपिंग बतानी है. ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे पैटर्न इज 2 is to, it is 2 is to 2 is to 2 is to 2. वहाँ पे फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन अगर मुझे याद, इफ आई एम करेक्ट, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन का पैटर्न आता था 2 is to 2 और ऑक्टाड का आता था 4 is to 4. ये फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन का. बाकी जितने भी रेशियोज थे 1 is to 2 is to 1, 1 is to 2 is to 2 is to 2 या 1 is to 2 is to 4, तो वो रेशियोज आते थे सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन के. फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन के यही दो है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो ये है, तो दैट 2 is to 2 is to 2, दैट मीन्स इट इज सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन. सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन 2 is to 2 is to 2 is to 2, it's also second division segregation. 2 is to 2 is to 2 is to 2, second division segregation. And 2 3 4 is to 4, it is first division segregation. It is 2 is to 4 is to 2, second division segregation. Or it is 4 is to 4, it is first division segregation. फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन. पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है. नंबर दिया गया है, कितने हैं ये नंबर नीचे दिया गया है. आपको रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है. रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है बराबर हाफ ऑफ, अगर आपको याद होगा, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100. ठीक है, सो हाफ ऑफ सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन कितने हैं टोटल? 20 हो गए, 30 हो गए, 35, 40 टोटल है. सो इट इज हाफ ऑफ 40 विल बी 20 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? सो 30 हो गए, 30 प्लस 10 40 65 प्लस 30 5 6 9 95. So it will be 20 divided by 95 into 100. 20 divided by 30, 20 divided by 95 into 100 is 21. So it is 21%, or we can say 21 centimorgan. That means ये अगर सेंट्रोमियर है, यहाँ से जो B जीन है, क्योंकि ऑर्डर टेट्राड आपको बताता है G इंटू सेंट्रोमियर डिस्टेंस, तो यहाँ पे अगर B जीन लोकेट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है G इंटू सेंट्रोमियर, इट इज 21 सेंटीमॉर्गन. 21
सेंटीमॉर्गन, ऐसे बनता है जेनेटिक मैप। क्लियर? तो दिस वाज फ्रॉम द ऑर्डर टेट्राड। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फ्रॉम फॉलोइंग टेट्राड एनालिसिस ऑफ न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा की अगर बात हो रही है दैट मीन्स इट इज ऑर्डर टेट्राड। फॉलोइंग एस्कस रिपोर्टेड, ये एस्कस इनको मिला है यहाँ पे। विच जीन इज मोर फार फ्रॉम द सेंट्रोमियर, आपको बताना है कौन सा जीन सेंट्रोमियर से ज्यादा दूर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो जीन्स की बात की गई है, ए और बी जीन की बात की है, तो आपको बताना है पहले ए और सेंट्रोमियर की दूरी निकालनी है, उसके बाद बी और सेंट्रोमियर की दूरी निकालनी है, तब आप बता सकते हो कि विच जीन इज मोर क्लोज और विच जीन इज मोर फार फ्रॉम द सेंट्रोमियर। क्लियर? सो लेट अस टेक फर्स्ट, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। डोंट गेट कंफ्यूज्ड a plus b minus a plus b, no, you don't have to do anything with that. What you need to do, just focus over one at a time, either focus on a or focus on b. So if you take first a, if we take a, so it will be a का pattern अगर आप देखोगे it is 2:2, 2:2 is first division, 2:2 is first division for a, don't mix it with the b right now, don't do anything with the b, first focus on a and then we will take b. सो ए का जो है ये वाला पैटर्न इज फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, 2:2 आल्सो फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, फर्स्ट डिवीजन, 1:1:1:1:1 it is second division segregation, second division for A, 1:2:1 second division, second division segregation, 1:2:1 it is second division segregation, 1:2:1 is second division segregation. तो हम क्या करेंगे, पहले ए का देखेंगे, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, इट विल बी हाफ ऑफ सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो सेकंड डिवीजन टोटल कितने आ रहे हैं, सेकंड डिवीजन इज 20, 25, 20 plus 5 is 25, 25 plus 25 will be 50. So it will be half of 50 will be 25 divided by how many are total? Total is they are 10, 30, 40, 45, 50, 70, 75, 75 plus 10 is 85, 85. 85 is total multiplied by 100. So it will come 25 divided by 85 into 100 will be 29.4. So 29.4%, or we can say 29.4 centimorgan. A gene जो है that is away from the centromere by 29. So if it is centromere and if it is A gene here, so the distance between the two is 29.4 centimorgan. ठीक है, अब हम बी जीन का लेते हैं। बी जीन का देखो, बी का दूसरे कलर से ले लेते हैं हम, सो दैट वी विल नॉट गेट कंफ्यूज। ओके, फॉर बी इट इज 2:2, दैट मीन्स फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, 2:2 इज फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, 1:2:1 इज सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन, 1:2 क्योंकि यहाँ पे -2 है और ये, सो इट विल बी 1:2:1 इज सेकंड डिवीजन, 1:2:1 is second division, 1:1:1:1 will be second division segregation. Clear? Second division segregation कितने आ रहे हैं आप टोटल? second division segregation 20, 20 और प्लस 5 is 25, 25 हो गए 50 और 50 प्लस 10 is 25, 50, 50 plus 10 is 60. So recombination frequency of B gene is 60 का हाफ हो गया 30 डिवाइडेड बाय टोटल है 85 इंटू 100, 30 divided by 85, 30 divided by 85 into 100, 36. 36 centimorgan. Okay, so if you construct a map,
36 centimorgan. Clear? So the distance between A and centromere was 29. The distance between B and centromere is 36. So which gene is far from the centromere? It is B gene. It is B because it is 36. Clear? So answer will be B gene. B gene. Clear to everyone? So इस तरह से क्वेश्चन लिए जाते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज अगर वहाँ पे ए और बी लिखा है या ये ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन दी है. पहले ए पे फोकस करो फिर बी पे फोकस करो. ठीक है? और आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉर सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन, ऐसा जरूरी नहीं है अगर ए फर्स्ट डिवीजन है तो बी भी फर्स्ट डिवीजन होगा. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. बिकॉज इट इज हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे अलग अलग जीन्स अलग अलग पैटर्न दिखा सकते हैं. क्लियर? सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. Consider the following cross in Chlamydomonas. So if it is saying it is Chlamydomonas, one thing should be clear in your mind that it is unordered tetrad, and other things associated with it will be, it should be like very quick to your mind that it is talking about the tetra-type tetrad, it is talking about the parental ditype, it is talking about the non-parental ditype, something like that. And if it is talking about the unordered tetrad, or we can see if it is talking about the Neurospora, then things clear in your mind should be like what? It should be in your mind, it should be like first division segregation, second division segregation, these things. ठीक है? तो इनको रिलेट करने की कोशिश करो, उसके बाद आप अपने वैल्यूज पुट करो अपनी फार्मूला में, आंसर विल बी इन योर हैंड विद इन सेकेंड्स. क्लियर? सो ये यहाँ पे ऑर्डर टेट्राड दिया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हमने अनऑर्डर्ड पढ़ा था, इट इज अबाउट द डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, सॉरी इट इज टॉकिंग अबाउट द 2 जीन्स. ठीक है? डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में ये बताता है, और ये बताता है वेदर द 2 जीन्स आर लिंक्ड और नॉट. ठीक है? तो क्वेश्चन यही है यहाँ पे कि ये टेट्राड दिया गया है, ये क्रॉस है पैरेंटल, सो इट इज P1 एंड इट इज P2 पैरेंटल. ठीक है? यहाँ पे आप पैरेंटल कॉम्बिनेशन ये है, और पैरेंटल कॉम्बिनेशन को देख के आप नीचे जो भी कॉम्बिनेशन इससे डिविएट करेगी वो होगी नॉन पैरेंटल, वो होगी रिकम्बिनेंट टाइप. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी इफ लिंक्ड. अगर ए और बी लिंक्ड है, इनके बीच की डिस्टेंस आप बताओ. आप कैसे बताओगे? आप क्या करोगे? पहले आइडेंटिफाई करोगे कौन सा टेट्रा टाइप है, कौन सा नॉन पैरेंटल डाई टाइप है, कौन सा पैरेंटल डाई टाइप है. तो ये चीजें पहले आइडेंटिफाई करोगे. आप यहाँ पे देखोगे ए प्लस बी प्लस इज नॉन पैरेंटल, a minus b minus non parental, a minus b minus non parental, a plus, so this will be non parental ditype. इसमें सारे के सारे नॉन पैरेंटल डाइटाइप टेट्राड. यहाँ पे आओ a माइनस बी माइनस, a प्लस बी माइनस, a माइनस बी माइनस, इसमें पैरेंट 2 और नॉन पैरेंट, सो इट विल बी टेट्रा टाइप टेट्राड. इसमें देखो a प्लस बी प्लस, a माइनस बी माइनस, a प्लस बी माइनस, a माइनस बी प्लस, a प्लस बी प्लस, a minus b minus non parental, these 2 parental, so it will be tetra type tetrad. इसमें दोनों प्रेजेंट. अब यहाँ पे आओ a minus b plus b minus parental, a minus, so this will be parental ditype tetrad. अब यहाँ पे a plus b a minus, so this is non parental ditype tetrad. यहाँ पे आओ a plus b minus b plus, पैरेंट नॉन पैरेंट कैसे बताएंगे? पैरेंट को देख के, ऊपर पैरेंट दिया गया है, इसको देख के आप बता सकते हो. ऊपर ये भी हो सकता है a प्लस बी प्लस, a माइनस बी माइनस, ये भी हो सकता है. जो ऊपर होगा पैरेंट वही आपको नीचे कंसिडर करना है. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा यही पैरेंट कॉम्बिनेशन होगी, a प्लस बी माइनस होगा या a माइनस बी प्लस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. जो दिया गया होगा पैरेंट वही आपको कंसिडर करना है पैरेंट, और बाकी जो भी डिविएट करेगा उससे वो होगा नॉन पैरेंटल और वो होगा रिकम्बिनेंट टाइप. जैसे आप पे देख रहे हो a प्लस बी इज माइनस, a माइनस बी इज प्लस, a प्लस बी इज माइनस, सो यहाँ पे सारे के सारे पैरेंटल, सो दिस विल बी पैरेंटल डाइटाइप टेट्राड. फार्मूला हमारे पास क्या है? रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगी? हाफ ऑफ टेट्रा टाइप प्लस नॉन पैरेंटल डाइटाइप डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100. ठीक है? ये हमारे पास फार्मूला है. अब टेट्रा टाइप कितने हैं? टेट्रा टाइप आप देख रहे हो, टेट्रा टाइप है 20 हो गए 25 आपके पास टोटल है. सो इट इज हाफ ऑफ 25, 12.5 प्लस
नॉन पेरेंटल टाइप 10 10 और ये 10 हो गए 20, सो इट इज़ 20 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 30 30 60 हो गए 90 100 100 120 120 इज टोटल 120 इज टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100 करो, सो इट विल बी हाउ मच 12.5 प्लस 20, this comes 32.5 divided by 120, this is 0.02 multiplied by 100 will be 27.0, so it is 27.0%, or we can say 27.0 सेंटीमॉर्गन। दैट मीन्स ए और बी के बीच को, अगर ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है, इनके बीच की जो दूरी है दैट इज 27 सेंटीमॉर्गन। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं CSIR में, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाए, और भी आपके पास अगर क्वेश्चंस होंगे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर आपसे नहीं बन रहे क्वेश्चन तो आप हमें वो फॉरवर्ड कीजिए वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट होता है, तो यहाँ पे हम सब पूरे क्वेश्चन तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन हम उठा लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हमें लगता है कि इससे आपका, और पैटर्न यही रहता है। तो अगर टेट्राड एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा, जो मैंने यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन दिखाए, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। अब बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, क्योंकि हर एक एग्जाम में वो रिपीट तो नहीं करेंगे क्वेश्चन, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्वेश्चन की, लेकिन कंसेप्ट यही होगा पैटर्न में। अगर आपके पास कंसेप्ट स्ट्रांग है, फिर वो कुछ भी बॉडी लैंग्वेज वहाँ से दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई थिंक फॉर दिस लेक्चर इट इज़ एनफ, एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम अब बात करेंगे, वी हैव कंप्लीटेड द जीन मैपिंग ऑफ डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, eukaryotes, both diploid as well as haploid organisms. Now we will move to the we can say gene mapping in or we can say microbial genetics. So in the next lecture we will take the microbial genetics, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, वो सारी चीज़ें लेके कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम मूव करेंगे टू द ह्यूमन जेनेटिक्स धीरे धीरे, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर दिस लेक्चर, सो please do subscribe more and more, share, comment and give your feedback to our channel. That's very important, and that is important for our growth as well. So thank you. Allah Hafiz.